So, Hare Krishna, Hari Bol, Dhanapnam everyone. Welcome to this power-packed session on a very fine Sunday, right? It's a warm Sunday over here, and to make it a bit more sunny, we have Sudama Vipra Prabhu over here, right? And Sudama Vipra Prabhu is a very senior devotee, बहुत वरिष्ठ Anand वैष्णव है. Katha Prabhu, Yes, thank you Prabhu. for making it very sunny because I am sunny. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. I know. I know that, Prabhu. So, as you can see, कि जो सुदामा विप्र प्रभु हैं, he is very much full of enthusiasm, and this enthusiasm that he carries with himself is very contagious. So, a disclaimer in advance. So, if you're listening from him, you are about to imbibe the mood of Prabhu as well. And ISKCON नोएडा में जब भी प्रभु जी दिखते हैं, whenever I see प्रभु जी, he is always surrounded by youngsters for some reason, right? And the reason is that many devotees are able to relate with what Prabhuji has to say and offer to the young generation. Prabhuji, if I go into details, then Prabhuji jo hai, let's start off with from where the roots are. So जो प्रभु जी के roots हैं, they are, first of all, he is a disciple of Param Pujniya Gopal Krishna Goswami Maharaj, right? है ना, who is very dear to all of us, right? And प्रभु जी ने अपनी जो भक्ति शास्त्री है, which is an intensive study of Shastras, which comprises of 4 books: Bhagavad Gita, Nectar of Instruction, Nectar of Devotion, and Sri Ishopanishad. He has completed Bhakti Shastri course as well back in 2014. And the reason why I say that he is very committed and very active, because ये उनके सदाचार से पता चल जाता है. He is a very I would say an ardent follower of Bhagavad Gita 3.21, Yad Yad Acharati Shreshtas, right? And I always see him talking to youngsters and distributing books, right? Prabhupada always says books are the basis, right? And जब हम जैसे बद्ध जीव, right? हम जैसे बद्ध जीवों के जब बेसिस थोड़े डावाडोल होते हैं, तो हमें शुद्ध वैष्णव के चरण पकड़ने चाहिए. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैव दीज पावर पैक्ड एनर्जी सेशंस. सो at the same time, Prabhuji, let's talk about his occupation. So he is serving as area director of commercial sales and revenue distribution with Select City Walk and select hotels at Manesar and Goa. So Prabhuji, Srila Prabhupada and Chaitanya Mahaprabhu के मिशन को different segments में further on कर रहे हैं, starting with preaching, which is very evident, right? Second is book distribution, again, which was mentioned earlier, right? And at the same time, Prabhuji loves to deliver sessions or kathas when it comes to Srimad Bhagavatam, right? He is very much into preaching in Gurgaon and Delhi. तो हम सभी का सौभाग्य है, सुदामा विप्र प्रभु हम सभी के बीच में हैं. एक बार हम जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर उनका स्वागत करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Thank you so much, Prabhuji, for your time. Over to you. Indebted we are. Yes, Prabhu. Now we'll be able to hear you. Thank you. So thank you so much everyone for joining us today, this Sunday, on the topic how to develop love for Krishna. भगवान के प्रति हमारा प्रेम किस प्रकार उदय हो. So I'm going to keep this class in Hindi and English mix, right? Because मेरे सामने जो audience है वो Hindi and English mix है. Same here, Prabhu. We're good to go. Perfect, great. तो आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले मेरा एक प्रश्न आप सबसे है, जो मेरे सामने बैठे हैं और जो मेरे लैपटॉप के अंदर है, उन सबसे, कि आप यह बताइए कि भगवान से भक्ति करने के तात्पर्य में आप क्या समझते हैं. तो जो जूम पे हैं वो अपना हैंड रेस करेंगे, उनको बोलने का मौका दिया जाएगा. और जो मेरे सामने है वो भी अपना हैंड रेस करेंगे, उनको बोलने का मौका दिया जाएगा कि भगवान से आपका संबंध है
या आपका कोई भी आकर्षण है, इससे क्या तात्पर्य है आपका? तो हमारे सामने एक माता जी हैं, उन्होंने हाथ खड़ा किया है। जूम वाले प्रभु जी और माता जी को हम अभी पकड़ते हैं। बताइए माता जी। हाँ सॉरी, बताइए। से क्या था? हाँ। भक्ति में पूर्ण तरीके से आश्रित है भगवान के ऊपर। तो मेरे सामने माता जी जो बैठी हैं, इनका नाम है शुभी, और इन्होंने कहा मेरा संबंध भगवान से इसीलिए है क्योंकि मैं पूर्ण समर्पण करना चाहती हूँ। और यहाँ पर मेरे साथ तीन और पार्टिसिपेंट्स हैं। सबसे पहले प्रखर प्रभु ने हाथ खड़ा किया, तो हम प्रखर प्रभु से पूछते हैं कि उनका क्या तात्पर्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आई होप आई एम ऑडिबल। प्रभु जी, यस यू आर। से भक्ति भक्ति से तात्पर्य होता है मतलब बस दो शब्द, अहेतुकी और अप्रतिहता। दैट परफेक्टली डिफाइंस भक्ति कि भक्ति कैसी होनी चाहिए आइडियली। लाइक वी शुड नॉट आस्क फॉर मनी, वी शुड नॉट आस्क फॉर फेम, फॉर women, फॉर अदर थिंग्स। कृष्णा विल प्रोवाइड ऑल ऑफ दैट in time to come when he'll see that we are deserving. परफेक्ट, गुड। युवराज। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। विजिट टू रेंडर सर्विस टू कृष्ण। गुड, great. Do we have anyone else? I saw one Mataji also raising her hand. ओके, ग्रेट। सो अभी ये जो सब जवाब आपने दिए हैं, हम इन सब पे चर्चा करने वाले हैं कि भगवान से प्रेम किस प्रकार विकसित किया जाए। तो सबसे पहले ये प्रश्न के माध्यम से मैं ये जानना चाहता था कि आपकी समझ क्या है कि भक्ति किस प्रकार हमें भगवान से जोड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर एक भक्त को ये समझ ही नहीं है कि वह कौन है, भगवान कौन है, उसका संबंध भगवान से किस प्रकार का है, तो निश्चित रूप से वो इस प्रेम के पराकाष्ठा को नहीं समझ सकता है। और इस प्रेम को मनुष्य ही नहीं, जानवर और निम्न जीव की, निम्न योनि के जीव भी भरपूर समझते हैं अपनी अपनी परिभाषा में। आज हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम में से कई श्लोक हैं जिनके माध्यम से भगवान के प्रेम के विषय में हमें समझने को मिलता है। परंतु आवश्यक यह है कि क्या वो यहां तक है या यहां तक है। क्यों? क्योंकि अक्सर बचपन से जो सिखाया जाता है वह यह है कि प्रेम करो, लेकिन तब जब आपको प्रेम के बदले में कुछ वापस मिले, आदान प्रदान। परंतु भगवान से किया जाने वाला प्रेम क्या किसी आदान प्रदान के मोहताज है? ना। अगर वो आदान प्रदान के मोहताज है, तो जितना भगवान हमें देते हैं क्या हम वापस देने की क्षमता रखते हैं? डू वी हैव द कैपेसिटी टू गिव बैक व्हाट वी गेट फ्रॉम द लॉर्ड? इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम माप ही नहीं सकते हैं कि भगवान ने किस प्रकार की व्यवस्था हमारे लिए की है। जब माप ही नहीं सकेंगे तो किस आधार पे वापस करेंगे? क्योंकि संसार में किसी भी संबंध में लेन देन की प्रथा है। अगर आपको कोई देता है तो आप कहते हैं उसी तुलना में हमें वापस करना है। स्वार्थ आ गया ना। परंतु जब भगवान देते हैं, यदि वो स्वार्थी बन जाएं और माप तोल कर देने लगे कि नहीं, इसने एक कदम बढ़ाया था तो मैं भी एक ही कदम बढ़ाऊंगा। परंतु भगवान क्या कहते हैं कि अगर एक कदम बढ़ाता है और मैं एक कदम बढ़ाता हूं, लेकिन उस एक कदम में मुझे इसका भाव समझ में आ गया, तो मैं अगले 10 कदम बढ़ाने में भी चूकने वाला नहीं हूं, मैं पीछे नहीं हटने वाला। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? सुहृदम सुहृदम सर्वभूताना, कि वे यहां से प्रेम करते हैं और हम यहां से प्रेम करते हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है जहां पर एक बार अन्य गोपियां श्रीमती राधा रानी के समक्ष बैठी हुई है और चर्चा कर रही हैं और कहती हैं कि हे राधे, आप बताइए कि आपको कृष्ण के समक्ष इतना समय बिताने को मिलता है, परंतु हम तो उन्हें देख भी नहीं पाती हैं।
तो कृष्ण किस प्रकार के दिखते हैं? जिस समय इस प्रश्न की जिज्ञासा गोपियां करती हैं, उसी समय क्या होता है, राधा रानी की आंखों से ऐसे आंसू निकलने लगते हैं कि वो रुकते ही नहीं है। और सब सखियां कहती हैं, अरे क्या हुआ, हमने ऐसा क्या पूछ लिया आपसे, आप इतने आंसू बहा रही हो? क्या कुछ गलत जिज्ञासा की? क्या हमें जानने का अधिकार नहीं है वो कृष्ण जो आपको इतने प्राण प्यारे हैं, वो कैसे हैं, उनका स्वभाव, उनकी मुखाकृति कैसी है, उनके शरीर की कांति कैसी है, आप इसका वर्णन करो और इसकी व्याख्या करके हमें समझाओ। तो हमने ऐसा क्या गलत पूछा जो आपका रोना ही नहीं रुक रहा है? तो श्रीमती राधा रानी इस प्रश्न का उत्तर देते कहती है कि कृष्ण एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा प्रेम है, जिसके विषय में सुनने मात्र से ही मेरी आंखें इस प्रकार भर जाती हैं, और इस प्रकार मेरी आंखों में एक ओझलता सी प्रकट होने लगती है कि जब वो मेरे सामने होते भी हैं तो भी मुझे दिख नहीं पाते हैं। तो सखिया कहती हैं, अच्छा, ऐसा भाव होता है कृष्ण के विषय में सुनने मात्र से ही आपको, कि आप उनके नाम को सुनने से इस प्रकार का व्यवहार करने लगती हो। तो अपने मन को कठोर बना लो। अगर मन कठोर बना लोगी तो फिर आंसू तो नहीं आएंगे, ये धुंधलापन तो नहीं होगा आंखों में, तो कृष्ण के दर्शन तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो वो कहती है, मैंने ये भी करने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि मैं भी कृष्ण को परस्पर देखना चाहती हूं, उनकी सुंदरता का आनंद लेना चाहती हूं, परंतु कृष्ण की छवि इतनी विस्तृत है कि मेरी छोटी आंखों में वो बैठ ही नहीं पाई। तो गोपियां कहती हैं, ये तो बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे विचित्र हैं कृष्ण कि उनको समझना ही बहुत मुश्किल है। तो किस प्रकार हम उनके दर्शन करें, किस प्रकार हम उनको समझें? तब गोपियां कहती हैं, तब राधा रानी कहती हैं कि यदि कृष्ण को समझना है या कृष्ण को प्रेम करना है, तो तुम किनके पास जाओ? ऐसे महात्माओं के पास जाओ जिन्होंने अपने शब्दों में कृष्ण को बांध लिया है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को समझना है तो केवल और केवल आपको कथा से, कर्ण द्वार, अपने कानों के माध्यम से समझना संभव है, अन्यथा कृष्ण को समझना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये आंखों में यदि कृष्ण समा भी जाए तो क्या होगा? इनके ऊपर बनी हुई पलकें पल पल में झपकती रहती हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है पलकें हैं ये, क्योंकि हर पल झपकती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पलकें। और जैसे ही ये आंखों की पलकें बंद होती हैं, उसी समय ऐसा लगता है कि एक युग बीत गया, कृष्ण से विरह होने लगता है। तो क्यों ना इस ब्रह्मा को, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, उसको बुला के कहें कि अब से तुम्हारी सरकार चलने वाली नहीं है, अब से हमारी सरकार चलेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इस कृत्य शरीर में तुमने जैसे भी हमारी कृति की उसमें दोष है, तुम्हारी संसार के, तुम्हारी सरकार के संचालन में भरपूर दोष है। क्यों? क्योंकि तुमने इन आंखों से, जिन आंखों से हम कृष्ण को देख सकते हैं, उनमें ये पलकें बना दी, तो कृष्ण समा भी जाएं तो हम उनको महसूस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ब्रह्मा की सरकार नहीं चलेगी, सरकार हमारी चलेगी। और यदि मेरे पास ये सरकार बनाने का सौभाग्य हो, तो मैं अपने शरीर के हर एक एक छिद्र में, एवरी पोर ऑफ माई बॉडी, मैं आंखें दूंगी और उनमें पलकों का निर्माण नहीं करूंगी, ताकि कृष्ण के दर्शन मुझे भरपूर होते रहे, मेरी आंखों में कृष्ण का रस इस प्रकार भर जाए कि मैं भक्ति के रस में पागल हो जाऊं। तो इसीलिए आप देखिए, ब्रज में एक साधु है, वो कृष्ण के प्रेम में श्रीमती राधा रानी के
प्रेम में इस प्रकार पागल हुए कि हर समय रोते रहते थे, और फलस्वरूप क्या हुआ कि आंखों की रोशनी ही चली गई। आंखों की रोशनी जाने के बाद भी आंसू तो नहीं रुके। तो एक बार राधा रानी को उनकी करुण पुकार सुनाई दी, और राधा रानी ने कहा, अब निश्चित रूप से मैं जाऊंगी और जाके इस बाबा को अपने दर्शन दूंगी। तो राधा रानी एक छोटी सी कन्या के रूप में जाती है और कहती है, अरे बाबा क्या हो गया, क्यों रो रहा है, क्या तेरी कोई वस्तु खो गई? तो बाबा जी कहते हैं कि देखो, मैं सन्यासी हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा खोने को और पाने को है ही क्या। अच्छा, तो फिर क्या तेरी बीवी खो गई? तो कहते हैं, अरे अभी तो कहा मैं सन्यासी हूं, सन्यासी की बीवी होती है क्या? तो फिर क्या तेरा कोई अपना खो गया? तो कहते हैं, हाँ मेरा कोई अपना खो गया। मैंने तो ऐसा सुना था कि जब कोई ब्रज में आता है और आके करुण पुकार करता है श्री श्री राधा श्याम सुंदर को, उस समय निश्चित रूप से श्याम सुंदर आए या ना आए, पर राधा रानी जरूर प्रकट होती हैं। पर अब मुझे ऐसा महसूस होने लग गया है कि ये श्याम सुंदर के साथ रहते रहते ये राधिका भी बड़ी निष्ठुर हो गई है, इसे मेरी करुण पुकार सुनाई नहीं दे रही है। तो राधा रानी कहती है, बाबा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई प्रेम से श्री जी को पुकारे और श्री जी प्रकट ना हो। तो कहते हैं, मुझे क्यों प्रकट नहीं हो रही है? तो कहती है, उसका कारण यह है कि तुम गुरु कृपा विहीन हो। जिस समय गुरु की कृपा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, स्वयं श्री जी श्याम सुंदर को लेकर आएंगी और आपको अपने दर्शन देंगी। ये गुरु की कृपा किस प्रकार प्राप्त होती है वह समझना भी बहुत जरूरी है। हमारी गुरु वंदना में कहते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशीलो, चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु शई। कि आप इस प्रकार के चक्षु का दान करते हैं, नेत्र का दान करते हैं। इस संसार में कई प्रकार के सामाजिक क्रियाकलापों में दान की प्रथा है, नेत्र दान, अंग दान, अन्न दान। तो गुरु भी हमें दिव्य चक्षु दान करते हैं, और उन दिव्य चक्षु से किस प्रकार की चेतना का विकास होता है? वह चेतना ऐसी है कि हम हर एक एक जीव में कृष्ण को देखें। अर्थात यह नहीं है कि वह जीव कृष्ण बन जाएगा, परंतु ठाकुर जी उसके चित्त में परमात्मा के रूप में रहते हैं। और जिस समय हम सबको ठाकुर जी का एक अंश मानते हुए उसकी सेवा में लगते हैं, तो निश्चित ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। मुख्य रूप से जब किसी साधु का संग करने का सौभाग्य प्राप्त हो, उस समय हमें क्या करना चाहिए? बहुत सतर्क रहना चाहिए, यह सोचकर कि आज जब कई मेरे पुण्यों से, मेरी जन्मों की भक्ति से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे साधु का संग प्राप्त हुआ, तो आज मैं कृष्ण प्रेम इनसे लेकर ही जाऊंगा, कृष्ण प्रेम इनसे लेकर ही जाऊंगी। इसीलिए कहा जाता है कि साधु के समक्ष बैठकर विनम्रता से जिज्ञासा करने से ही ये प्रेम भक्ति का गूढ़ रहस्य आपके हृदय में प्रकाशित होने लगता है। आप ये देखिए, हमने कितनी ही कथाएं सुनी हैं, कितना महाप्रसाद खाया है, कितने ठाकुर जी के कई कई सामग्री को स्पर्श किया, आलिंगन किया, सूंघा, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी महसूस होता है कि प्रेम के लक्षण तो बन ही नहीं पाते हैं। थोड़े समय पहले प्रखर प्रभु कह रहे थे, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। कि मुझे कामना नहीं है, किसी भी चीज की कामना नहीं है। पर क्या ये कहने में अच्छा लगता है या वास्तविक रूप में ही नहीं है? क्योंकि कामनाओं की तो कोई सीमा ही नहीं, खत्म ही नहीं हो रही है।
और भगवान भी क्या करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें कामना की आवश्यकता है, तथास्तु, लो, कर लो पूर्ति जितनी करनी है। लेकिन प्रेम का अधिकारी कौन है, जो कहता है कि मुझे केवल आप ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप आए और आके मेरे इस कठोर, दुर्बल, जटिल हृदय में आके वास करें, ताकि ये एक मंदिर बन जाए। और ये संभव होता है केवल कथाओं से। इसीलिए गोपियां कहती हैं, सखियां कहती हैं श्रीमती राधा रानी को कि आप सत्य कह रही हैं कि इतने जटिल कृष्ण को अपनी इंद्रियों में भर पाना बहुत ही कठिन है। और भगवान ने भी क्या किया, भगवान ने देखा जैसे कलयुग आ रहा है, तो भगवान ने कहा मैं अगर कलयुग में कहीं भी किसी को भी दिख गया तो बहुत दुविधा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मोबाइल फोन पकड़ के सब बोलेंगे आप दिख गए तो सेल्फी लेंगे आपके साथ। तो किस किस के साथ मैं सेल्फी लेता रहूंगा? तो भगवान ने कहा मैं एक ऐसा सूक्ष्म स्थान चुनता हूं अपने निवास के लिए, जहां पर बहुत लोग चाहकर भी नहीं खोज पाएंगे। तो भगवान ने क्या, परमात्मा के रूप में आके हमारे हृदय में वास कर लिया। आप खोजते रहो, तो पूरे संसार में खोजो, मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा जब तक तुम यहां पर पहचान मेरी नहीं कर पाओगे। और ये पहचान केवल और केवल गुरु के माध्यम से ही हो सकती है। तो इस संसार में जो कहते हैं कि भगवान पे आस्था है परंतु गुरु पे आस्था नहीं है, ऐसे जीवों को कृष्ण की प्राप्ति नॉट पॉसिबल, दूर दूर तक नहीं हो सकती है। ऐसी ही एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक बार भगवान नारद मुनि को अपने साथ लेकर जाते हैं एक स्थान पर जहां पर बड़े बड़े पहाड़ हैं। इतने बड़े पहाड़ हैं कि आप नीचे से ऊपर भी देखेंगे तो आप उसकी सीमा खत्म होने वाली नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि नारद आप जानते हैं ये सब कौन है? तो वो कहते हैं नहीं प्रभु, आप बताइए ये कौन है, मेरा तो परिचय इनके साथ नहीं हुआ, मैं तो इस प्रकार के स्थान पे ही पहली बार आया, हालांकि मैं पूरे ब्रह्मांड में जा सकता हूं, परंतु आप जिस स्थान पे लेकर आए उस स्थान पे तो मैं कभी पहले आया ही नहीं। तो वो कहते हैं कि ये वो पंच तत्व है जिससे ये शरीर बना है। ये असंख्य वर्षों तक तपस्या करते हैं मेरी प्राप्ति के लिए, मेरे दर्शन के लिए, और मैं इनकी तपस्या के फल स्वरूप प्रकट होकर इन्हें अपने दर्शन देता हूं और कहता हूं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। और ये कहते हैं कि हम आपकी दिव्य लीला में प्रवेश करना चाहते हैं, परंतु मैं इन्हें कहता हूं नहीं हो सकता है। और यह पुनः तपस्या करने लगते हैं और असंख्य वर्षों तक इनकी तपस्या कायम रहती है। मैं फिर प्रकट होता हूं और कहता हूं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो ये कहते हैं हमें आपकी दिव्य लीला में प्रवेश चाहिए, और मैं कहता हूं नहीं हो सकता है। और ऐसा करते 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 दिस कीप्स ऑन रिपीटिंग। और हर बार इनका शरीर जिस समय पंच तत्व के रूप में ढेर हो जाता है, उसके इतने बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि भगवान आप इतने कठोर क्यों हैं, कब से तपस्या कर रहे हैं, ये वर्षों की कोई संख्या नहीं है, क्यों नहीं आप इनको वो देते जो इनको चाहिए? तो वह क्या कहते हैं, उसका मुख्य कारण यह है, एक, इन्होंने तपस्या तो करी परंतु मेरे प्रति प्रेम विकसित नहीं कर पाए। यदि इनके मन में मेरे लिए प्रेम होता तो इन्हें आवश्यकता महसूस होती गुरु की। क्योंकि ये गुरु विहीन है, गुरु विमुख है, इसलिए ये मेरी दिव्य लीला में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो वह कहते हैं तो इनको गुरु की प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवान कहते हैं तुम्हें किसके लिए यहां पर लेकर आया हूं? अब मैं आपको आज्ञा देता हूं कि आप इन सबको अपना शिष्य बनाइए, ये पुनः तपस्या करेंगे और इनकी तपस्या का फल आप इन्हें देंगे मेरे आधार पे। तो इन्हें मेरी दिव्य लीला में प्रवेश प्राप्त होगा। इस प्रकार भक्ति में प्रवेश होता है। और जब प्रेम की बात आती है,
ये प्रेम केवल और केवल गुरु कृपा से मिल सकता है, क्योंकि ये प्रेम इस संसार के प्यार की तरह नहीं है। मैं कहता हूं आई लव यू, क्यों? क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं दूसरा व्यक्ति कहे आई लव यू टू। पर यहां पर भाव कैसा होना चाहिए? राधा कृष्णा प्राण मोरा, युगल किशोर, जीवने मरने गति, यारो नाही मोर। ये भाव कि केवल और केवल मेरा प्राण धन राधा कृष्ण ही है, अन्य किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम कहते हैं भगवान आई लव यू। यदि भगवान आप ना भी इसका रेसिप्रोकेशन करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई लव यू। मेरा अधिकार मेरे प्रेम पे है, मैं उस प्रेम को आपको समर्पित करती हूं या करता हूं। आप प्रेम करते हैं करें, नहीं करते ना करें, मुझे नहीं फर्क पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं मेरे प्रेम में इतना बल है कि एक ना एक दिन आप अपने आप खिंचे चले आएंगे। तो ब्रज गोपियां उद्धव को कहती हैं कि उद्धव तुम जाके बोल दो कृष्ण को कि यदि हमें अपने दर्शन ना देकर मर्माहित करने में उन्हें आनंद प्राप्त होता है, तो इस आनंद का भरपूर मजा उठाएं। परंतु हमें आनंद जिसमें प्राप्त हो रहा है वह है वियोग। यदि प्रेम हो भी गया तो उसको किस आधार पे मापेंगे? हम कहते हैं प्रेम है, आधार मापने का क्या है? कि हम दें तो हमें वापस मिले, हम जैसा करने को कहें वैसा कोई पुनः लौट आए। पर शुद्ध भक्त का भाव क्या है? कि नहीं आना है मत आओ, नहीं दर्शन देना है मत दो, परंतु मेरे पास एक ऐसा धन है जो आप चाहकर भी नहीं छीन सकते हो, और वह क्या है? मेरी प्रेममयी भक्ति में वियोग, जो इस प्रकार का भाव है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, किसी भी रूप में नहीं की जा सकती है। इसीलिए गोपियां कहती हैं कि ये जितने भी कथा करने वाले हैं, कृष्ण ने इन सबको रिश्वत देके रखी है। कृष्णा हैज ब्राइब देम। क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार के शब्दों को चुनकर कृष्ण की व्याख्या करते हैं कि मन में वो वियोग अपने आप प्रकट होने लगता है। ना कृष्ण को देखा हो तब भी मन में एक ऐसी छवि प्रकट हो जाती है और लगता है कि कितना प्रेम है इस नाम में। तो क्या करेंगे कृष्ण के दर्शन पाकर, जब कृष्ण तुम्हारी कथा ही हर समय हमारे जीवन का आधार है? नहीं चाहिए तुम्हारे दर्शन, मत दो। तुम्हें दूर रहकर प्रसन्नता है, तुम भरपूर प्रसन्नता में आनंद में रहो, क्योंकि तुम्हारी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। ठाकुर जी के समक्ष जाए मंदिर में दर्शन करने के लिए तो अक्सर शुरुआत में लोगों को लुभाना पड़ता है कहकर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप मंदिर आया करो, कीर्तन में बैठो तो मन शांत होगा। आप प्रसाद पाएंगे तो आपके मन में जटिलता का सर्वनाश होगा। लेकिन गोपियां कहती हैं कुछ नहीं चाहिए, केवल इस वियोग में, इस सेपरेशन में जिस प्रकार का आनंद मुझे मिलता है, यदि ये आनंद ही मेरे जीवन का आधार हो गया तो कृष्ण आपको प्राप्त करने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। आप स्वयं नहीं रोक पाएंगे, आपको आना ही पड़ेगा। There is no way that you will not come. You will have to come, Krishna. Therefore,
to take shelter of Krishna Katha is very, very important. Why? Because ये कृष्ण कथा में ही कृष्ण की प्राप्ति का रहस्य छुपा हुआ है। इसीलिए कई भावों में कई आचार्यों ने कथाएं सुनाई हैं, और केवल इन आचार्य के भावों को समझने से ही ये भाव रूपी शब्द से कृष्ण का प्रवेश चित्त में होने लगता है, और जहां पर कृष्ण आते हैं उससे पहले प्रेम का उदय अपने आप हो जाता है, क्योंकि जहां पे प्रेम नहीं है वहां कृष्ण नहीं आएंगे। इसीलिए आप देखिए कि जिन्होंने मूल रूप से कृष्ण को अपना प्राण धन माना है, उन सब के प्राकट्य से, उन सब के प्रकट रहने से ही उस स्थान में परिवर्तनशीलता महसूस होने लगती है। और उस परिवर्तनशीलता का परिणाम ही कृष्ण की उपस्थिति है। इसीलिए गोपी गीत में भी सबसे पहले पंक्ति में कथा के विषय में बोला गया, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कि ये कथा का अमृत ही जीवन है। और इस कथा में ही रुचि नहीं है संसार के लोगों को, और कहते हैं कि हम भगवान में विश्वास रखते हैं। किस प्रकार का विश्वास है ये? इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने जिस प्रकार के ग्रंथ हमें दिए हैं, उन ग्रंथों में बहुत सरल व्याख्या करके समझा दिया कि ये लव ऑफ गॉड इतना चीप नहीं है। प्यार हो सकता है, प्रेम नहीं होगा। और इस प्रेम के कई उदाहरण हैं हमारे जीवन में। आप देखिए, एक मछली को आप दूध के तालाब में छोड़ दो, क्या वो सुखी रह पाएगी? क्यों? क्योंकि उसका प्रेम जल के साथ है। एक मोर इंतजार करता है कि कब वर्षा ऋतु आए, काले बादल आए, वर्षा की बूंदें पड़े तो मैं अपने पंख फैला के नाचूं। तो इस प्रकार का प्रेम दिखता है इन जीवों में भी। एक पपीहा क्या कहता है कि वर्षा की पहली बूंद जिस समय मेरे मुख में प्रवेश करेगी, मेरी प्यास खत्म हो जाएगी। ये उदाहरण है कि किस प्रकार की प्रेममयी लालसा हमें कृष्ण के लिए होनी चाहिए, कि अगर मैं मंदिर ना जा पाऊं तो मुझे ऐसा लगे कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं भगवान के सुंदर दर्शन नहीं कर पाऊंगा। एक प्यासा व्यक्ति, उसके आप एक क्या कर सकते हैं, अपने पानी में हाथ को डुबाकर ऐसे छींटे मारो उसके मुंह के अंदर, तो उसको क्या लगेगा? उसको हल्का सुख मिलेगा, हल्का कष्ट होगा, कहकर कि मैं इतना प्यासा और मुझे तड़पा तड़पा के पानी दिया जा रहा है। उसी प्रकार की अवस्था यदि एक मनुष्य की कृष्ण के लिए हो जाए तो प्रमाण है कि प्रेम के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को स्वयं कृष्ण हाथ पकड़कर उस पानी के तालाब में डुबा देंगे और कहेंगे, ले डूब जा। जितना प्रेम पीना है, जितना प्रेम सुनना है, जितना प्रेम चखना है, चख ले। अब तेरे लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं रह गया। आप ये देखिए, श्रील प्रभुपाद के बचपन से लेकर अंत तक कृष्ण के प्रति इतनी श्रद्धा कि जिस उम्र में प्रभुपाद ने चुनाव किया कि उन्हें अपना घर त्याग कर अब अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है, वो बहुत बड़ा रिस्क था, वो एक आम इंसान नहीं ले सकता है। लेकिन उनकी श्रद्धा इतनी अटूट थी कि उन्होंने क्या कहा कि अब कुछ भी क्यों ना हो, जीवन तो खत्म करना ही है, परंतु मैं चुनाव करता हूं कि जैसे तैसे मैं कृष्ण की सेवा में ही इसकी आहुति करूंगा।
वो निकल गए। ये प्रमाण है एक शुद्ध भक्त का निश्चित रूप से। पर आप ये देखिए, जिस समय कोई कृष्ण के लिए पागल हो जाता है, मैडनेस फॉर कृष्णा, उस समय वो किसी भी उम्र का हो, उसे फर्क नहीं पड़ता है। आई डोंट केयर, इफ आई हैव टू डू इट, आई विल डू इट नो मैटर व्हाट। प्रभुपाद का एग्जैक्टली सेम एटीट्यूड था कि अब मुझे जाना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, स्वयं कृष्ण भी आएंगे, मैं रुकने वाला नहीं हूं। निकल गए। तो उसके आगे की कहानी आप सबको पता ही है, कितनी असुविधाएं, रुकावटें, संघर्ष उनके जीवन में रहा। परंतु अंत क्या है कि आज जो हम सबको मिला है, जो हम सब अपने जीवन में परिवर्तनशीलता महसूस करते हैं, जिस प्रकार की मनोवृत्ति एक भक्त होने के नाते हमें उपहार में प्रभुपाद ने दी है, ये मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए बहुत बड़ा योगदान है। तो हाँ, कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि हम सबको पागल बनना है कृष्ण प्रेम के लिए, क्योंकि यदि कोई पागल नहीं होगा कृष्ण प्रेम के लिए, तो इस संसार से, उस संसार में उसको प्रवेश नहीं मिलने वाला है। तो गोपियां पागल नहीं थी क्या कृष्ण के लिए? उदाहरण देखिए, सब कहते हैं कि राधा का प्रेम ऐसा है। राधा कृष्ण की भक्त नहीं है, वो स्वयं कृष्ण का विस्तार है। परंतु अगर प्रेम को देखना है, चैतन्य महाप्रभु, थोड़े ही दिनों में मुझे भी उम्मीद है आप सबको गौर कथा सुनाई जाएगी, जो कृष्ण प्रेम की पागलपन की लिमिट है, वो चैतन्य महाप्रभु के कैरेक्टर में देखने को मिलती है। ओ माय गॉड, जब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो देखेगा कि ऐसा भी होता है। दिस इज इनकंसीवेबल, ये अकल्पनीय है। दैट इज लव फॉर कृष्णा। मैडनेस इज लव फॉर कृष्णा। आई डोंट केयर, ये संसार को जो सोचना है सोचने दो। कोई मुझे क्रिटिसाइज करे बोल के कि तुमने सर मुंडवा दिया, तुम तिलक लगाते हो, पूरा दिन माला पकड़ के पागलों की तरह कुछ भी जपते रहते हो, तुम धोती कुर्ता पहन के छोटी उम्र में निकल जाते हो हरे कृष्णा करने के लिए। यदि ये चीजें आपको प्रभावित करती हैं, ये सूक्ष्म लक्षण है कि कृष्ण के प्रति आकर्षण ही नहीं है, प्रेम तो बहुत दूर की बात है। एक फौज में रहने वाले फौजी को पूछिए कि वह क्या होता है अपने परिवार से, कि उसे 24 घंटे यूनिफॉर्म में रहना पड़ता है, और वह यूनिफॉर्म में रहकर क्या कहता है कि मेरा देश महान है, इस देश के लिए, इस शरीर का परित्याग करने में मुझे संकोच नहीं है, मैं आहुति देने को तैयार हूं। यदि मुझे भारत माता के लिए अपने प्राणों को त्यागना पड़ा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उस प्रकार का मनोबल और भावना जिस समय हमारे जीवन में भी आ जाए, तो आप समझ लीजिए कृष्ण के प्रति आकर्षण का उदय हो चुका है। वो पागल है। अगर वो फौज में भी, जिस समय युद्ध हो रहा है सीमा पर, उस समय उनको भय नहीं लगता है कि हमें गोली लग जाएगी या तोप से निकला गोला हमारे शरीर के चीथड़े उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि वे पागल बन चुके हैं। उसी प्रकार लव ऑफ गॉड मीन्स मैडनेस फॉर कृष्णा। इट हैज टू बी देयर। इफ इट इज नॉट देयर, कृष्णा इज नॉट सो चीप टू अटेन। पर हम कितने लकी हैं कि प्रभुपाद ने व्यवस्थित रूप में हमें कहा कि जो जिस आश्रम में है, उस आश्रम के नियमों के अंतर्गत रहते हुए कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करने का प्रयास करें। इसीलिए प्रचार के लिए हम इतने तत्पर रहते हैं। परंतु ये एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। ये सब कृष्ण के जन, कृष्ण के दूत हैं। इन सबको कई कई दिशाओं में जाकर संसार में भ्रमित भटके लोगों को लेकर आना है। कोई बुरा कहे, कोई अच्छा कहे, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क इससे पड़ना चाहिए कि क्या मेरे जाने से वो प्रभावित हो रहा है कृष्ण के लिए या नहीं। मैं अपने आप को एक ध्वज
पकड़ के घोषित करता हूं कि मैं कृष्ण का दास हूं। परंतु क्या और लोग मेरे इस भाव से, दासत्व के भाव से दास बनने को तैयार हैं या नहीं? क्या ये प्रेम मैं उनके हृदय में दे पा रहा हूं या नहीं? ये जरूरी है, क्योंकि प्रेम वही दे सकता है जिसके पास स्वयं प्रेम है। जिसके पास प्रेम नहीं है, वो अन्यों को प्रेम का वितरण करने का अधिकारी नहीं है। आज और हर समय, हर घड़ी, यदि हम अपने आप को कृष्ण भावना भावित मानते हैं, कहते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने इस प्रेम को मापें और स्वयं से जिज्ञासा करें। इतना जीवन बीत गया, इस शरीर में रहते असंख्य वर्ष, और कितने ही शरीर प्राप्त हो गए। क्या आज भी कृष्ण प्रेम की ये बूंद का स्वाद मिल पाया या नहीं? यदि उत्तर हाँ है, तो जाइए अपने गुरु के पास जाकर उनसे आप पूछिए कि मुझे लगता है हो पाया है, आपको क्या लगता है कि यह संभव है या नहीं है? तो आपके गुरु वेरीफाई करेंगे कि हाँ या ना। और जिसको नहीं लगता है वो भी गुरु के पास जाए और उनके चरणों में अपना माथा लगाते हुए कहे कि आप बताइए ये कृष्ण प्रेम प्राप्त कैसे होता है, कब होगा, और इसको प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। यही एक भक्त के जीवन का वास्तविक संघर्ष है, था और रहेगा। यही एक प्रेम के पथ पर चलने वाले प्रेमी का चिंतन का विषय रहता है। कब होगा? कौन सा ऐसा समय आएगा जिस समय मैं कहूंगा कि शुद्ध नाम में रुचि, अपराधे गुचि, अपराध खत्म होंगे और शुद्ध नाम में रुचि बढ़ेगी। हर एक एक चीज जुड़ी हुई हमारे भक्ति जीवन से कृष्ण की प्राप्ति के लिए सुगम है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी यदि प्रेम के लक्ष्य नहीं आ पा रहे हैं, इस संसार का द्वंद दिखता है, भेदभाव दिखता है, तो समझ जाइए कि अभी मन बहुत कमजोर है। और इसे मजबूत बनाने के लिए हमें शरण लेनी पड़ेगी। सबसे सरल है कथा की शरण ले लो। जिसने कथा की शरण गंभीरता से ले ली, कृष्ण की प्राप्ति बहुत सरल है। कथा के बाद नाम जप करना संभव है। कोई केवल नाम जप करे और कथा में उसका मन नहीं लगता है, तो समझ जाना चाहिए कि अभी मन में बहुत ही ज्यादा त्रुटि है, फुल ऑफ फॉल्ट्स, कि सब कर लेंगे पर कथा में मन नहीं लग रहा है। तो ये हृदय की दुर्बलता को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि सब कर लिया और कथा में आपका मन नहीं लगता है, आप कहीं के धार्मिक नहीं है। धार्मिक वह है जिसका मन पूर्ण रूपेण कथाओं से कृष्ण की प्राप्ति की ओर बढ़ता है, अन्यथा सब अधर्मी है। समय की सीमा का पालन करते हुए, वी हैव रीच्ड द टाइम, इट इज 12:45। मैं अपने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन व्यूवर्स से कहूंगा कि यदि उन किसी का कोई प्रश्न है तो जिज्ञासा कर सकता है। Anybody has any questions may feel to raise hand and ask. किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Yes, Diksha. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। आपने जैसे लास्ट क्वेश्चन पूछा, लाइक लास्ट में अभी ये चीज आपने मेंशन करी कि कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम जप में मन लगता है लेकिन कथा में नहीं, तो जस्ट उसका अगर वाइस वर्सा हो तो, क्योंकि जनरली ये होता है कि नाम जप करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कई बार स्पीकर बहुत अच्छे है तो सुनने में हमारा मन लग जाता है। तो ऐसे केस में क्या ये सही है या ये गलत है या क्या करना चाहिए? देखिए, अगर कथा में मन लगता है तो निश्चित रूप से कहते हैं जो कथा में कहा गया वो जीवन में उतारना भी है,
राइट? ऐसी कौन सी कथा है जिसमें कृष्ण के नाम पे चर्चा नहीं होती है? और ऐसा कौन सा कथावाचक है जो कृष्ण के नाम की शरण लेने को नहीं कहता? अगर आप कहते हैं कथा में सब सुना, बहुत अच्छा लगा, उतारने की इच्छा भी है, परंतु जो कहा गया वो नहीं करेंगे, तो किस प्रकार की श्रद्धा है आपकी कथा और कथावाचक में? इन अ वे ये वही हो गया ना जो मैंने कहा था। कथा का उद्देश्य ही एक जीव को नाम की शरण दिलवाना है। अगर आप नाम की शरण नहीं ले रहे हैं, नाम का आश्रय नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप समझ जाओ कि आप जो भी कर रहे हो दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। Everything eventually should take us close to chanting and taking shelter of the holy names of the Lord. If this is not happening, then either you are lost or the one who's reciting katha is not able to give you what you need. Therefore, कथा किसी से भी जाके नहीं सुनना है। कथा उसी से सुनिए जिसमें क्षमता है सामने बैठे श्रोताओं के चित्त परिवर्तन की। क्यों? क्योंकि भगवान भी उससे पूछते हैं, बेटा कथाएं तो तूने बहुत करी, कितने लोगों का मन परिवर्तन किया ये बता। तो कथा देने वाले की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे उठ के ना आ जाए कथा बोलने के लिए, उसके मन में भी भाव होना चाहिए, क्योंकि भाव है तो भाव दे पाएगा। यदि भाव नहीं है तो कितनी कथाएं कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। लोग वाह वाह करेंगे, तालियां बजा देंगे, जय जय बोल देंगे, लेकिन क्या हुआ? आपका ईगो बढ़ गया, लेकिन जो सामने वाले हैं उनका क्या होगा? सो इट इज अ ड्यूटी। हम यहां पर बैठते हैं कथा देने के लिए, यह हमारी जिम्मेदारी है कि जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं उन सबका चित्त परिवर्तन हमें करना है। कृष्ण ने हमें चुना है। Therefore we are missionaries. We are not just missionaries because we wear dhoti kurta and put tilak and some rounds of kanthi mala. No. Your impact of what you do in Krishna consciousness has to be substantial and should lead to a transformation without fail. I'm glad you brought this question up, but it eventually takes you exactly where I am coming from. कि सब कर लिया और कथा में मन नहीं लगता है तो आपने क्या ही किया? कथा ही जीवन है और कथा के माध्यम से ही भक्ति के अन्य अंगों की पुष्टि होती है। That is the bottom line. I hope you get this clear. Right? Thank you. Hare Krishna. Yuvaraj Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन कि आपने बताया कि जिसके पास कृष्ण प्रेम नहीं है वो कृष्ण प्रेम डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकता। एट द सेम टाइम आपने बताया कि वी शुड गो फॉर प्रीचिंग एंड प्रभुपाद चाहते थे भी कि प्रीचिंग हो, एंड हम लोग ये इंस्ट्रक्शंस से हमारे को मिलती है अथॉरिटी से कि यस वी शुड प्रीच, हमारे को रजिस्ट्रेशन करना है, क्लासेस के लिए इनवाइट करना है। देन हाउ हमारे को जब कृष्ण प्रेम हमारे अंदर नहीं है, इट इज हम लोग न्यू फाइट है, वे स्टार्टिंग ऑफ द स्टेज है, देन हाउ शुड अप्रोच, हमारे को प्रीचिंग को कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, प्रीचिंग के कई लेवल्स होते हैं। आप बिगनर हो सकते हैं, कृष्ण प्रेम नहीं है परंतु प्राप्त करना चाहते हो, हाँ या ना? आपकी योग्यता यही है कि आप प्राप्त करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि प्राप्त करना ही अपने आप में एक शुरुआत है। तो जो प्राप्त करना चाहता है, जैसे हम कहते हैं कि नहीं नहीं देखो हम उनके घर नहीं जाएंगे, उनके घर पे ना उनको बुखार है, उनके घर जाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। यदि आपको कृष्ण प्रेम का एक वायरस लग चुका है, आप जाके वो वायरस सबको दे सकते हो, ये आपकी योग्यता है। या आप चाहते हो कि मैं इसको और डेवलप करूं, मतलब आप अधिकारी बन गए दूसरों को देने के लिए। अब कृष्ण व्यवस्था करेंगे, आप मार्ग पे चलने लग जाओ, शुरू तो करो। स्वयं कृष्ण व्यवस्था करेंगे कि आपको जिस जिस तक पहुंचना है वो अपने आप लेकर जाएंगे, और ऐसी रुकावटें भी लेकर आएंगे कि आपको लगेगा अरे मेरे को तो और अच्छे से संघर्ष करना चाहिए लोगों को प्रेरित करने के लिए कि वे कृष्ण के भक्त बने।
अब हमने जब शुरू किया था तो ऐसा तो नहीं था कि हम जाते थे किसी के सर पे हाथ रखते थे तो वो हरी बोल करने लगता था। नहीं, बुक्स बांटने रेड लाइट पे जाना तो इतना संघर्ष होता था कि लोग भाव ही नहीं देते थे बिल्कुल भी। फ्रस्ट्रेशन होती थी, डिस्करेज हो जाते थे। पर जब एक्सपीरियंस डिवोटीज के साथ जाते थे तो वो कहते थे कि प्रभु इतना आसान नहीं है, यू विल हैव टू स्ट्रगल। ये स्ट्रगल में ही पूरी शक्ति छिपी है। जितना स्ट्रगल करोगे उतना ही संचार होगा। तो ये मत सोचिए कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज लाइक ग्रैबिंग अ पीस ऑफ केक एंड ईटिंग इट एंड हैविंग फन। नो, स्ट्रगल है, बिल्कुल है। और जैसे जैसे कलयुग प्रगति कर रहा है, सबसे ज्यादा स्ट्रगल बाहर नहीं है, वो आंतरिक है, मन में है। सबसे पहले उसी बंधन को तोड़ना है। जैसे ही वो बंधन टूटेगा, धीरे धीरे करते करते ये प्रेम अपने आप प्रवेश करने लगेगा। सो प्लीज कीप ट्राइंग, राइट? ओके, सो वी हैव कपिल। अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू हरे फॉर कृष्ण। दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। प्रभु जी, आपने लास्ट में बताया था कथा में मन नहीं लगता तो वो अधार्मिक है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मन बुद्धि जो भगवान कहते हैं कि ये सब मेरी पराशक्ति है, तो हमारा मन ही नहीं लगता तो इसमें फिर मतलब हमारी गलती है या फिर वैसे तो हमारी गलती है, तो फिर मतलब इसमें मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। भगवान की शक्ति केवल मन और बुद्धि नहीं है, आप भी हैं। परंतु आपने कभी ये समझा कि मैं भगवान की शक्ति हूं? नहीं समझा, इसलिए दुरुपयोग किया। समझ लो, इसका सदुपयोग भी होने लगे। ये आपकी चॉइस की बात है। आप चूज करते हो आपको कृष्ण चाहिए या नहीं। यदि आपको कृष्ण चाहिए तो कृष्ण तो कह रहे हैं तथास्तु, आओ ले लो, मैं तो प्राप्त हो जाऊंगा। परंतु तुम चाहते हो, और यदि चाहते हो तो फिर तुम्हें वही करना पड़ेगा जो गुरुजन बता रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा मन बुद्धि तो बहुत ही ज्यादा जटिल है, मानता नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो आपको गुरु की शरण लेनी है। और गुरु की शरण अपनी अपने मन मुताबिक नहीं लेनी है कि मैं कुछ भी करना चाहूं, गुरुदेव कहेंगे हाँ बेटा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, मजाक है क्या कोई? आपको उनकी शरण बहुत सिंसेरली और सीरियसली लेनी है। कि यदि वो कहें कि यहां पर रुको और यहां पर रहकर ही तुम कुछ करके दिखाओ, तो आपको संकोच नहीं होना चाहिए, आप करने का प्रयास करो। निश्चित रूप से सही समय आने पर वह हो जाएगा जो गुरु चाहते हैं कि आपको करना चाहिए। इस प्रकार का पागलपन जब तक नहीं आता है किसी के जीवन में, तब तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। और ये पागलपन पागलपन नहीं है, ये प्रेम है। आपको किसी युवती से प्रेम है, उसके घर वाले शादी के लिए मना करते हैं, आप क्या कहते हैं? घर से भगा के ले जाऊंगा। तब सोचते हैं कि मेरा मन बुद्धि, मेरा बैंक बैलेंस, समाज, घर वाले क्या कहेंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आप प्रेम में पागल हो चुके हो। तो यहां पे भी ऐसा पागलपन चाहिए। आई होप दिस गेट्स यू राइट। ग्रेट। ओके, साहिल प्रभु। साहिल प्रभु। Hare Krishna Prabhuji, Dhanan Pranam. हरे कृष्ण। Thank you so much, Prabhuji, for sharing your wisdom on this confidential topic of Krishna Prema. So, my question is regarding, like I was hearing in one lecture from His Holiness Bhakti Dev Damodar Sai Maharaj, he says that pure devotee have everything, and when one serves the pure devotee, he can give anything that that person wants.
So, from the perspective of our lecture, it seems like you were discussing upon prema. So that means a prema can also be given by a pure devotee. So my question is, how a person should be serving a pure devotee to get prema? तो इनका प्रश्न यह है कि इन्होंने एक कथा में सुना है कि कृष्ण प्रेम एक भक्त से प्राप्त होता है, राइट साहिल प्रभु? साहिल प्रभु, यू देयर? Yes, Prabhuji, you are right. Yes. और उसके बाद लास्ट सेंटेंस क्या था आपका? तो प्रश्न ये था प्रभु जी कि शुद्ध भक्त के पास हर वस्तु है, तो दैट मीन्स मतलब उनके पास प्रेम भी है। तो हाँ महाराज है। बता रहे थे कि जब हम लोग सर्व करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तब हम लोग को वो प्रेम भी प्रदान कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि किस प्रकार से हम लोग को एक शुद्ध भक्त की सेवा करनी चाहिए, जिससे हम लोग उनको प्रसन्न कर सके और हमको भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो सके। तो शुद्ध भक्त की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए? देखिए, एक शुद्ध भक्त की सेवा, आपके सेवा करने का विचार आपके मन में तभी आएगा जिस समय आप उसमें कृष्ण को देख पाएंगे, या आप उसके व्यवहार से कृष्ण की प्राप्ति को सरल मान पाएंगे। तो ऐसे शुद्ध भक्त की सेवा करने के लिए आपको प्रयास करना नहीं पड़ता है। आपका मन उनके प्रति इस प्रकार आकर्षित होता है कि वो सेवा का मार्ग अपने आप बन जाता है और इसी से कृपा का द्वार खुलता है। गुरु के प्रति सेवा करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके माइंड में ये क्लियर है कि गुरु की सेवा अर्थात यहीं से कल्याण शुरू होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने कल्याण के लिए इतना लोभी हैं, हमें लगता है कि नहीं, थोड़ा कष्ट भी क्यों ना हो, गुरु की सेवा को हम त्याग नहीं सकते हैं। तो ये केवल शुद्ध भक्त की बात नहीं है। यदि हम सब अपराधों से बचना चाहते हैं, यदि हम सब कुदृष्टि से बचना चाहते हैं, यदि हम सब अपने मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार को पनपने नहीं देना चाहते हैं, तो दृष्टि इस प्रकार की हो जैसी गुरु के प्रति होनी चाहिए। प्रत्येक जीव को अपने गुरु के समान देखो, तो कभी कोई त्रुटि होगी ही नहीं किसी के प्रति। ये एक सबसे सरल उपाय है अपराध से बचने के लिए। क्यों? क्योंकि अपराधों की बात की जाती है कि अपराध से बचो, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, ये अपराध, वो अपराध, कैसे बचो? वो बहुत कठिन है, परंतु एक सूत्र बांध लो कि हर जीव में हम वही दृष्टि रखेंगे जो दृष्टि हम गुरु के प्रति रखते हैं, तो सब प्रकार के विकार अपने आप खत्म हो जाएंगे। ज्यादा कठिन नहीं रहेगा। और हर समय हमें क्या करना है? ये चिंतन में रहना है कि क्या मैं इस विचार के साथ हूं या इससे दूर हो गया। क्यों? क्योंकि जब तक हर परिस्थिति में, हर चीज में, हर समय कृष्ण को देखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो क्या अंत में ऐसे ही कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे? देयर इज नो जोक, राइट? कि हमने कुछ नहीं किया और एंड में अचानक से कृष्ण के दर्शन हो गए। आई डोंट थिंक सो इट्स दैट इजी, इज इट? Therefore, Krishna consciousness process is a training in itself to think, feel, and willingly learn to associate in any situation with Krishna at all times. Therefore, at the end, Krishna will come and will reveal his beautiful form to us. There is no other way. Do you all agree? Great. Sahil Prabhu, does this help you? Yes, Okay, Prabhuji. moving forward. Meher Prabhu, your question. Hare Krishna, Dhanarpam Prabhuji, please accept my Hare humble obeisance. Hare Krishna. Prabhuji, my question is moreover relevant to on a real ground.
So, doing an unconditional love versus doing a love on condition, how we can differentiate? Because it is also said कि जब तक आपकी materialistic life सही नहीं है, you cannot progress in your bhakti, right? Because होता क्या most of the time like हर इंसान के life में it can be different circumstances. So how to cope up with that situation and improvise in Krishna Prem? So यहाँ पे प्रभु बिकॉज होता क्या है एज एन जीवा व्हाट वी डू वी ट्राई टू लव कृष्णा ऑन अ कंडीशन इट शुड बी इन अनकंडीशनल लव बट वी ट्राई टू पुट और गिव लव टू कृष्णा ऑन अ कंडीशन कि मेरा पहले ये स्टेबल हो जाए देन आई विल अच्छे से आई विल डू द भक्ति सो हाउ टू केटर दैट एस्पेक्ट प्रभु जी इनका प्रश्न यह है कि जीवन में सब संतुलित रहेगा तो कृष्ण भक्ति हो पाएगी, यदि वैसा ना हो तो कृष्ण भक्ति कैसा हो, हालांकि हम जानते हैं कि कृष्ण प्रेम ही जीवन का आधार है। करेक्ट? सही है मेहर प्रभु? ओके। तो सबसे पहला भक्त भी कई प्रकार के होते हैं। सारे के सारे कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्त नहीं बनते हैं, कुछ भौतिक सुखों के लिए भी बनते हैं। बुरा नहीं है, कृष्ण की शरण में है, परंतु भौतिक सुख की कामना करते हैं, तो कृष्ण उनको भी स्वीकार करने को तैयार है, कृष्ण को कोई आपत्ति नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको उनसे कुछ कामना करनी है और उसके लिए भक्ति करनी है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, एग्जाम्पल ऑफ ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज ने वन में जाकर तपस्या करने का संकल्प इसलिए किया क्योंकि अपने पिता से बड़े साम्राज्य की इच्छा थी, परंतु तपस्या इतनी विचित्र और कठोर थी कि कई भक्तों को बहुत समय लगा भगवान के दर्शन के लिए, परंतु ध्रुव महाराज को कितना समय लगा? मात्र 3 महीने। और नारद कह रहे हैं जाकर भगवान को उनके धाम में कि एक विचित्र भक्त है, बहुत ही कठोर तपस्या कर रहा है और आपके दर्शन प्राप्त करना चाहता है। और भगवान कहते हैं कि उसकी तपस्या से मैं इतना प्रसन्न हूं कि वो मेरे दर्शन क्या करेगा, उसको तो स्वयं मैं अपने नहीं, उसके दर्शन तो मैं करने जाऊंगा। और जाकर जिस समय भगवान ने ध्रुव महाराज को अपने दर्शन दिए तो ध्रुव महाराज उनके दर्शन पाकर एकदम सुध बुद्ध खो दिए, मतलब एकदम भ्रमित हो गए। और उस समय भगवान ने क्या किया? अपने शंख को उनके माथे पे लगाया तो जाके उनकी चेतना कहीं वापस से जागृत हुई। और वहां पर ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि भगवान, मैं टूटे हुए कांच के टुकड़ों को खोज रहा था, यहां पर तो मुझे इतना बड़ा हीरा मिल गया। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी तपस्या से मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें लगभग 36,000 वर्षों का साम्राज्य प्रदान करता हूं। और वो कहते नहीं चाहिए मुझे, मैं गलत था, आप मिल गए तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? भगवान ने कहा नहीं, क्योंकि तुम्हारे मन में ये कामना थी, पर अब तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा। और उन्हें 36,000 वर्षों तक राज्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो भगवान आपकी भौतिक कामनाओं की भी पूर्ति करते हैं, यदि आपको उससे प्रसन्नता मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं आपके प्रश्न के दूसरे भाग पे कि मटेरियल लाइफ में सब सही रहेगा तो भक्ति करेंगे। ऐसा कोई समय नहीं आएगा मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियल लाइफ कभी सही हो सकती है, इट्स इम्पॉसिबल, ये भ्रम है। सब सही होगा तो करेंगे, कभी सही हो ही नहीं सकता तो मतलब कभी ना करें। यदि आपको लगता है कभी ना करने का विकल्प आपके लिए प्रैक्टिकल है, वो चुनाव आपको करना है। और यदि आपको लगता है कि सब एकदम ऑन ट्रैक हो जाएगा, वो भी नहीं होने वाला है, बिकॉज दिस मटीरियल वर्ल्ड इज नॉट परफेक्ट एट एनी टाइम एनीवेयर। तो ये भ्रम है, इससे बाहर निकल जाओ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सब सही होगा तो करेंगे? क्योंकि आपको इस संसार से उम्मीद है, वेरेन ये संसार आपसे उम्मीद करता है कि आप इस संसार के लिए कुछ करो। और इस संसार के लिए कुछ करना मतलब आप पूरे जीवन को कृष्ण भक्ति में लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप साधु सन्यासी का वेश स्वीकार करो, परंतु आप ये संकल्प करो कि मैं कृष्ण के संदेश का प्रचार करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करता हूं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि कृष्ण आपको इतना देंगे कि आपके दोनों हाथों से भी आप संभाल नहीं पाओगे, आप दोनों हाथों से भी संभाल नहीं पाओगे।
इसका उदाहरण शिला प्रभुपाद को देखिए। वो उस उम्र में सन्यासी का वेश स्वीकार करके जिस समय इंडिया से बाहर जाते हैं, कुछ नहीं था, परंतु जीवन के अंत तक उन्हें इतना मिला कि आज के भी कई पैसे वाले लोग फेल हो जाएं। और वो एक अकेला एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। तो अगर आपको लगता है कि भौतिक जीवन संतुलित होगा तब हो पाएगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब मन का विषय है। परंतु आप भक्ति में लग जाओ और आप इस आंदोलन के प्रचार में लग जाओ, आप में सब कमियां भी दूर हो जाएंगी यदि आप किसी शुद्ध भक्त के अनुगत्य में रहोगे तो। और अगर आप नहीं रहोगे तो कमियां बनी रहेंगी। और क्या रहेगा? संस्था में रहते हुए भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर दो जो अनुचित है, जो संस्था के नियमों के विरुद्ध है, जो बहुत कॉमनली देखने को भी मिलता है। ओके, प्रखर प्रभु, योर क्वेश्चन। मेहर प्रभु, आई होप दिस आंसर्स यू राइट। ग्रेट। प्रखर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आई होप आई एम ऑडिबल राइट नाउ। यस, वेरी प्रभु मच। जी, बताइए, आई हिंदी वुड हिंदी में लाइक बोलो। टू बिल्ड, मैं अपना क्वेश्चन पिछले दो क्वेश्चंस के ऊपर बिल्डअप करना चाहूंगा। जैसे साहिल प्रभु जी ने पूछा कि शुद्ध भक्त की सेवा कैसे करनी है, और दूसरा मिहिर प्रभु जी ने पूछा कि भक्ति तब कर सकते हैं कि जब लाइफ में सब नॉर्मल हो जाए। तो आपने बताया कि कुछ भक्त आते हैं किसी अन्य उद्देश्य से भक्ति में, और मतलब ऑल्दो सबकी इज्जत करनी है, सबका सम्मान करना है, परंतु मेरी लाइफ का उद्देश्य है मेरे को कृष्ण प्रेम प्राप्त कर रहा है, एज अलाइंड विद द टॉपिक। तो मैं शुद्ध भक्त को कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊं, जो भगवान की सेवा, जो भगवान के मतलब जिसकी श्रद्धा है भगवान के ऊपर, वो वैसे ही है जैसे शुद्ध भक्त की होनी चाहिए। चिता शून्यम। यस प्रभु जी। ऐसे किसी वैष्णव के साथ रहकर जिसके संग से, जिसके दर्शन से, जिसकी कथा से, जिसके आचरण से, जिसके उच्चिष्ट से परिवर्तनशीलता का एहसास जीवन में हो, वह शुद्ध भक्त है। इसलिए कथाएं भी सबसे नहीं सुननी चाहिए। कथाएं केवल ऐसे ही वैष्णव से सुनो जिसकी कथा से परिवर्तनशीलता का एहसास होता हो। वह भक्त शुद्ध भक्त है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने उसे उतना योग्य बना दिया कि वह सबको कृष्ण के प्रेम को दे सकता है। यह पहचान है। ऑफ कोर्स ग्रंथों में और डिटेल में समझाया गया है, आप उसकी शेल्टर ले सकते हो, परंतु सबसे पहला एक्सपीरियंस क्या रहता है? परिवर्तनशीलता का एहसास। यदि परिवर्तनशीलता का एहसास ही नहीं हो रहा है तो आप उसके संग में रहकर करोगे क्या? इसीलिए परिवर्तनशीलता का भाव ना होने के कारण इतना प्रजल्पा होने लगता है कि अच्छी खासी संस्थाओं में भी विकार आने लगते हैं। अच्छे खासे भक्तों का जीवन भी खराब होने लगता है। अच्छे खासे चलते हुए मंदिरों में भी झगड़े होने लगते हैं और मंदिर बंद हो जाते हैं। परिवर्तनशीलता ही एक भक्त के जीवन में कृष्ण का नए नए रूपों में परिचय देती है। और यही एक यूनिकनेस भक्ति की है, दैट देयर इज अ न्यू एक्सपीरियंस एवरी डे। आई होप दिस गेट्स यू राइट। ग्रेट, थैंक यू। हर्षिता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द सेशन। प्रभु हरे जी, कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये था कि समटाइम्स वी आर वेरी मच रेगुलर विद आवर साधना। हिंदी में बोलो। हम कई बार अपनी साधना के साथ काफी ज्यादा पर्टिकुलर रहते हैं कि चैंटिंग भी हो, हियरिंग भी हो, रीडिंग भी हो, लेकिन वो सब करने के बाद भी द जो आपने मैडनेस की बात करी वो नहीं आ पा रही है। तो फॉल्ट कहाँ पर है? आई फील वट जो भी है मेरे दिल में, इट इज नॉट नेसेसरीली लव फॉर कृष्णा, वट एवर इट इज, पर इट इज वेरी वेरी क्वाइट, और मतलब देर इज नो मैडनेस एट ऑल। तो इस मैडनेस को डेवलप करने के लिए एज अ बिगिनर क्या करने की जरूरत है? इफ यू मे गाइड। थैंक यू प्रभु जी।
ग्रेट। सो मान लेते हैं मैं आपके घर आऊं, आज हम पार्टी करते हैं रात में, और मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक काम करना, ब्लैक डॉग की बोतल लेकर आना। ब्लैक डॉग इज अ विस्की। आप ब्लैक डॉग की बोतल लेकर आना, मिल बैठेंगे दो यार और खूब जमेगा रंग, दोनों पीकर पागल हो जाएंगे नशे में। सो द होल अंडरस्टैंडिंग हियर इज, जब तक एक प्रेमी के पागलपन से आप पागल नहीं होते, तब तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं होने वाली है। Therefore, association with pure devotees is important. If you're not associating with pure devotee भी कई हैं, पर जैसा प्रखर प्रभु को बताया, जिनके संग में रहकर परिवर्तनशीलता का एहसास हो। उनके संग में नहीं रहोगे तब तक परिवर्तनशीलता आएगी कैसे? हम घर पे बैठते हैं, सब कर लेते हैं, आप मंदिर तो आ नहीं पाते हैं, अब बड़ा मोनोटनस सा लगता है, अब लगता है कि सब बहुत धीमा हो गया, रुक गया, तो कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? संग करना पड़ेगा। आप होमवर्क कर रहे हो, क्लास में तो नहीं आ रहे हो। जब आप स्कूल जाते हो, टीचर्स के बीच में बैठते हो, तो टीचर आती है, कभी कान खींचती है, कभी कहती है शो मी योर हैंड, स्केल से मारती है, कभी कभी थप्पड़ भी मार देती है। वो सब किसके लिए है? कि सोई अवस्था से जागृत करो। वैसे ही भक्तों के संग में आते हो तो वो क्या कहते हैं? अरे आप माया में हो, इससे बाहर निकलो, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो सीखते हो ना, न्यू एक्सपीरियंसेस आते हैं, राइट? उसी प्रकार आपको रेगुलर इंटरवल्स पे गुड डिवोटीज का संग करना जरूरी है, सो दैट यू आर अलाइव इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। अदरवाइज माला तो होगी, सब होगा, पर आपको एक्सपीरियंसेस नहीं है ना। एक बच्चा समर वेकेशन में घर पे रह के होमवर्क करता है तो पेरेंट्स को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है उसके साथ, लेकिन वही क्लास पे बैठ के उसको क्लास में टीचर पढ़ाती है, कितना सिंसेयरली करता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई है, उसको मालूम है नहीं किया तो उसकी पिटाई होगी। तो इसी प्रकार गुरु के अनुगत्य में रहना चाहिए, और जब गुरु करेक्ट करते हैं तो उनके करेक्शन को सपोर्टिवली स्वीकार करना चाहिए और जीवन में लागू करके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे न्यू एक्सपीरियंसेस आते हैं, राइट? आई होप दिस गेट्स यू राइट। ग्रेट। हरे कृष्णा। Anyone, any other question? So Anand Katha Prabhu, we are done. Yes, Prabhu. This was a very lively session, Prabhu. Everybody was on their toes because I guess the matter was of love. So definitely Great. everybody was on their toes. And Hope everyone will start running also. oh yes, up and running definitely. Engine आपने गरम कर दिया है. Everybody's tank is full. Now, thank you so much, Prabhu. This was a great blessing for all of us. And with I that, think there were some devotees who had left messages on the chat also, which I couldn't see. Can I just see? of course, Prabhu, there was, okay, I see one from Juhi Mataji. How will we know Huh. if our love for Srimati Radharani and Krishna is complete or not? The Guru will verify that. You yourself will not understand it. Therefore, when you approach a Guru and you have nothing to discuss, you should always ask the Guru, please tell me, with whatever I am doing, is that correct, complete, or no? You cannot quantify your love for Radha Krishna by your own judgment. You have to take shelter of a bona fide Guru and have to repeatedly ask him to verify. That is how the relation between a Guru and disciple has to be. It is not that Guruji आए, कभी कभी गए, उनको प्रणाम किया और पूछ लिया हाउ आर यू, उन्होंने कहा सब अच्छा है, हाँ जी हो गया। ऐसा नहीं होता है। गुरु से रिलेशनशिप इज वेरी पर्सनल। वैदिक काल में यह नियम था कि शिष्य केवल एक गुरु के अनुगत्य में रहकर उनसे जिज्ञासा करके ही सुनता था। लेकिन हम क्या करते हैं कि सब जाएंगे, आप हमें कृपा दीजिए। अरे किस चीज की कृपा देंगे? कोई कारण भी तो होना चाहिए ना। उनसे पूछो, मेरे मन में इस प्रकार के विकार हैं, गुरुजी बताइए कैसे दूर होंगे? क्या मुझे कभी कृष्ण प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस प्रकार का संबंध होना चाहिए। सिर्फ गुडनेस नहीं होना चाहिए, जाए स्माइल पास करी, हरे कृष्णा बोल दिया, एक बार नीचे झुक के प्रणाम कर दिया, चलो जी मीटिंग ओवर।
It is not going to help. It's not enough. You must have interest in associating with Guru with your practical spiritual difficulties and talking about it. And it is important for Guru to give you equal interest and time. If Guruji is too busy, then you please ask him to nominate someone जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है और जो उनका आचरण को पालन करता हुआ आपको वही सुझाव देगा जो गुरुजी दे सकते हैं. So this is a mutual reciprocation. This is the basis of relationship between a guru and disciple. Therefore, please make sure that you all be very wise in associating with Guru. It is just not नाम के आगे दास और दासी लगा लिया, अब हम चैंपियंस हो गए. That's not enough. केवल नाम मिलने से कुछ होने वाला नहीं है. पर्सनल एसोसिएशन का मतलब ही यह है कि अंदर जो है वो निकाल के बाहर रख दो. Transparent understanding and relation between Guru and disciple is the only way that you will achieve Krishna. Else there is no other way. Good. So I think this goes to Juhi well. Thank you so much, Prabhu. With your permission, could I just add a minute that I had in mind as well? Sure, please go ahead. Sure, Prabhu. So, first of all, thank you so much, Prabhu. And what my takeaways from this are, and if with your permission, with my head in your lotus feet, the points that I would add here are that Seva Bhav is so important, right? The attitude of servitude is so important in order to nurture the seed of bhakti, which is obviously based on the concept of unconditional love for Srimati Radharani and Krishna. So love, there were many questions, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि when will we realize कि whether there is love inside. So कोई भी endeavor हो, whatever initiative there is, it always starts with the first step, right? It always starts with the first step. And the reason why हमें पता नहीं चलता कि whether we are on the right path or not is because our hearts are so much conditioned to this perverted form of love that is so conditional in this material world, which is on the basis of consideration. Quid pro quo, मैं कुछ करूँ तो फिर उतना ही या उससे कम जो भी है ना. तो nobody has ever felt, किसी ने वो महसूस नहीं किया कि what it means and what it feels to go all in, right? Because सब दूध के जले हैं और छाछ फूक के पिए हैं, right? लेकिन that is not how reciprocation happens in the spiritual world, है ना? In the spiritual world, everybody is committed to each other, right? And एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर पंखा फुल स्पीड पर चल रहा है, सो द मोमेंट यू टर्न द स्विच ऑफ, इट टेक्स सम टाइम फॉर इट टू बिकम स्टैग्नेंट. हमारा जो हृदय है, इट इज़ फुल ऑफ अनर्थास. यस, द क्लेंजिंग हैज स्टार्टेड, बट इट नीड्स टू स्टार्ट समवेयर. तो उसी प्रकार से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट द जर्नी. गाड़ी भी जब हम गियर वाली गाड़ी चलाते हैं, बाइक भी जब चलाते हैं, तो फर्स्ट गियर पे जो बैलेंस थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज़ अ बिट डिफिकल्ट. देन इट बिकम्स स्मूथ एंड स्मूथ एज वी प्रोग्रेस. सो एज प्रभु जी सेड कि फॉर्म्स ऑफ साधना, there are particular forms of sadhana like japa. Your association matters so much, as प्रभु जी said, and प्रभु जी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया about the immense value that a guru brings to the table. गुरु प्रसाद के बिना भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण, है ना, it is very difficult to imbibe without a guru's instructions. So we need the GPS of a guru that can actually verify whether the bhav that we have in our hearts for Srimati Radharani and Krishna, whether that is accurate or not. क्या कमी है, क्या पेशी है ना. तो फिर on that note, I would just say that जो tasks once we are in love, so प्रभु जी के मुँह से बहुत मैंने it's a wonderful class, and one takeaway, that realization is for me, that once we are in love with the deities, with Srimati Radharani and Krishna, or love, if we just talk about love, the things that usually seem to be very very difficult, बहुत कठोर लगते हैं करने के लिए किसी और व्यक्ति के लिए भी,
So when we are in a state of love, those efforts seem to be effortless, right? है ना? Distributing books in the sun in the summer season, if there is no love in the heart, it's a waste of time, as Prabhuji said, right? But once we see the reason behind what we're doing it, what it means to the Supreme Personality of Godhead, जिनके साथ हमारा एक अभिन्न रिश्ता है, we are all parts and parcels of Krishna. Bhagavad Gita 15.7, it's a very personal opener. Mama eva amsha, mama मेरे, एव ही अंश, जिगर के टुकड़े हो, तुम मेरे ही जिगर के टुकड़े हो. Krishna is saying, तुम मेरे ही अंश हो, right? But since Krishna says yathechasi tatha kuru in the end, then he leaves it to the jiva, because love can never be forced. It's a two-way street. So this was a very for me personally, I can say it was a session full of realizations. I've taken down notes, Prabhu. I've taken down notes, right? I was writing, है ना? So प्रभु जी के चरणों में नमन है, ठीक है? एंड आपसे बस यही निवेदन है प्रभु कि आप हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे, ठीक है? You will be merciful to all of us. You will continue to be merciful to all of us, है ना? एंड आप अपना संग हम सबको देंगे. एंड जिससे पहले you say anything, I just have one small request, ठीक है? मेरे मन में एक क्वेश्चन आया एंड मुझे 1-on-1 पिंग्स भी मिले रिगार्डिंग द सेम टॉपिक. सो द नेक्स्ट टाइम जब आप शास्त्र संगा के चौखट पर आएँ तो आपसे एक नमन है कि जो टॉपिक होगा वह है व्हाट टू आस्क अ गुरु, राइट? बिकॉज गुरु पे इतना आपने एम्फसाइज किया है, तो डेफिनेटली जब आप हमें गुरु तक लेकर जा रहे हैं, सुदामा विप्र प्रभु हमें गुरुओं का दर्शन करा रहे हैं, तो वहाँ पे जा अगर हम पहुँच गए गुरु के सामने, हमारी तो बोलती बंद होगी. हमें नहीं पता हमने क्या पूछना है, हमें नहीं पता कि व्हाट इज़ द डेकोरम, वी डू नॉट नो व्हाट इज़ द प्रोटोकॉल. तो सुदामा विप्र प्रभु प्लीज़, है ना, अलकनंदा को भागीरथी में मिलाइए, राइट? एंड प्लीज़ गंगा का उद्गम कीजिए. एंड प्लीज़ ये हमारी विनती है आपके चरणों में कि वाई व्हाट टू आस्क अ गुरु, इफ़ दैट कुड बी द नेक्स्ट टॉपिक. Done. We will definitely talk about it, provided I have sufficient time to prepare also. Right. I mean, it's just that I'm running extremely busy these days, but I'm grateful to you likewise for having me invited over to associate, to give me a chance to associate with all of these devotees, including yourself. And I'm very hopeful our association goes a long way. It will, Prabhu. We will make sure of it. So, एक बार हम जोर से सुदामा विप्र प्रभु के लिए हरे कृष्णा महामंत्र का आह्वान करेंगे. उनको I also want to thank you. One second. I also want to thank you all of my audience here who are sitting offline. I'll show you all of them. We are sitting here at one of our devotees' house. Hare Krishna, everyone. Right. Because of your class, I got a chance to interact with them as well. No, Prabhu. Thank you so much, offline audience, for accepting and accommodating these online audience. This online audience in the confines of your room. We are very much grateful to everyone over there. Right? Loads of love from Shastra Sangha. Right? Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari. Back to Godhead ki jai. Jai. Hari Bol. Thank you so much, Prabhu. Thank you so much, everyone. I hope everybody has a wonderful weekend ahead, right? Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Hare Krishna, Hari Bol, Dharma Pranam. See you very, very soon. Hare Krishna. Thank you so much.